তাদের লক্ষ্য আছে তাদের লড়াইটা মূলত মোদী সরকার যেভাবে 3টে কৃষক আইন একেবারে কৃষি ক্ষেত্রটাকে সম্পূর্ণত কর্পোরেটের কবজা করে দেওয়ার জন্য যে আইন এনেছেন তার বিরুদ্ধে লড়াই, সেই সঙ্গে সঙ্গে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষির তার জন্য আলাদা আইন করা এবং কৃষি আয়োগ তৈরি করা, এই দাবিগুলো নিয়ে তারা এসেছেন। এবং তাদের মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে চাইছে যে শক্তি তারা কত ভয়ঙ্কর, তাদের স্বরূপটা কি তারা মর্মে মর্মে বুঝেছেন। সেই জায়গা থেকে নো ভোট টু বিজেপি, বিজেপিকে একটিও ভোট নয়, এই দাবিও তারা তুলেছেন। আমাদের সঙ্গে আজকে যারা এসেছেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার বাদিকে প্রথমে আছেন তেজবীর সিং। তেজবীর সিং হরিয়ানার ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের স্পোক্স পার্সন, হরিয়ানা ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের হরিয়ানা শাখার স্পোক্স পার্সন। তারপরে আছেন গুরনমিত সিং, উনি সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, যাদের নামে আপনারা দেখেছেন সব জায়গায় প্রচার হচ্ছে, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার অন্যতম পদাধিকারী এবং স্পোক্স পার্সন। এবং অন্য যিনি আছেন তিনি বিনোদ কুমার রানা, উনি গন্না কিষাণ সংঘর্ষ সমিতি অর্থাৎ যারা আখ চাষিদের যে সংগঠন সেই সংগঠনের উনি সভাপতি, হরিয়ানার সভাপতি। উনি উত্তরপ্রদেশের থেকে গুরমিতজি আছেন, উনি হরিয়ানা থেকে আছেন, দুজনে হরিয়ানা থেকে আছেন। ওরা আপনাদের সামনে বলবেন, আপনাদের যা প্রশ্ন আছে সেটা আপনারা করবেন। আমরা গতকাল ওরা শিলিগুড়িতে এসেছেন এবং আমরা গতকাল সন্ধেবেলাতে আমরা সবাইকে খবর দিতে পারিনি, আর ওই সময়টা আপনাদের পক্ষে ঠিক সময়ও নয় আমরা জানি। একটা ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চ শিলিগুড়িতে তৈরি হয়েছে, যেখান থেকে আমরা লম্বা সময় ধরে বিজেপি বিরোধী অর্থাৎ নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেনের মধ্যে আছি। আমাদের আয়োজনে গতকাল একটি নাগরিক সভা হয়, সেই সভায় প্রচুর মানুষ ছিলেন, তাদের কাছে ওরা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমরা চেষ্টা করছি যে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রান্তগুলোতে ইতিমধ্যে ওরা কুচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত, শীতলকুচি, মাথাভাঙা, বিভিন্ন গ্রামে বসে কৃষকদের সঙ্গে ওরা সভা করেছেন, সেখানে তারা প্রচার করেছেন। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আমরা আরো নির্বাচনের আগেই আলিপুরদুয়ার বা অন্যান্য জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নিয়ে গিয়ে প্রচারটা অভিযানটাকে আমরা চালাতে পারবো। তো আমি সময় বেশি নষ্ট করব না, আমি আগ্রহ করব যে হ্যাঁ বিনোদ আপনাদের সামনে প্রথমে বক্তব্য রাখছেন গন্না কিষাণ সংঘ সমিতির সভাপতি শ্রী বিনোদ কুমার রানা। हमारा आंदोलन 5 जून को जब ये अध्यादेश जारी हुए थे किसानों के खिलाफ, तभी से शुरू हो गया था। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हमने पहले मेमोरेंडम दिए थे डीसी के माध्यम से। पहले मुख्यमंत्री के नाम, गवर्नर के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन देने से शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही आके दिल्ली बैठ गए थे। तो जब उसके ऊपर भी कोई बुलावा किसानों के लिए नहीं आया नई दिल्ली से, तो उसके बाद 20 जुलाई को हमने अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी सभी प्रदेशों के अंदर। 20 जुलाई को ट्रैक्टर यात्रा निकाली, उसके बाद भी किसी ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया। और जब 5 जून को ये अध्यादेश आए, उस समय कोरोना का काल था, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये सोच के कि किसान विरोध नहीं करेगा, तो ये अध्यादेश 5 जून को जारी किए गए थे। कोरोना काल के अंदर कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन किसान बाहर आया, उसने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। और 15 अगस्त को पूरे उत्तरी भारत के अंदर काला दिवस भी मनाया था, आज़ादी वाले दिन, लेकिन उसके बाद भी किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। फिर नवंबर के महीने में 5 नवंबर को भारत बंद की कॉल दी, उसके बावजूद भी सरकार ने किसानों की बात सुनने के लिए की जहमत नहीं की, किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। तब सभी 500 संगठन दिल्ली में इकट्ठा हुए और आगे की रणनीति ये बनाई कि सरकार विभिन्न प्रदेशों में बैठे हुए किसानों की बात नहीं सुन रही,
इसलिए दिल्ली चल के अपनी बात सुनाते हैं। तो 25 नवंबर को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। सभी प्रदेशों से दिल्ली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान अपने अपने प्रदेशों से चले, लेकिन सभी सरकारें जो थी वहाँ, जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, सभी जगह जहाँ जहाँ से भी ट्रैक्टर लेके किसान चले सभी जगह बैरिकेडिंग की गई किसानों को रोकने के लिए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठी चार्ज भी किया और पानी की बौछारें भी की गई। आप सभी मित्रों ने वो देखा होगा, अपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी दिखाया गया था। किसान 26 नवंबर को दिल्ली में पहुंच गया। उसके बाद तब सरकार ने कुछ सूद ली, बातचीत के लिए बुलाया। हमारी 4 डिमांड थी। 4 डिमांड थी, कृषि बिल वापस, एमएसपी की गारंटी का कानून बने, और एक जो बिजली का बिल आया हुआ था जिसके अंदर के प्रावधान था कि प्राइवेट को बिजली दी जाएगी और कमर्शियल के रेट लागू होंगे किसानों के ऊपर भी और घरों के ऊपर भी। एक हमने उसकी डिमांड रखी थी। और एक पोल्यूशन एक्ट था जिसके अंदर अगर किसान अपने खेत के अंदर पराली जलाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जो कि संभव नहीं है कि किसान अगर 1 एकड़ के अंदर जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भी होती है और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाए। तो इसके ऊपर बात हुई, लेकिन सरकार ने एक बार भी हमारी जो मुख्य डिमांड थी कि तीनों कानून वापस लिए जाए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, सरकार ने इसके ऊपर कोई कान नहीं रखा, कोई हमारी बात के ऊपर सुनवाई नहीं की। सरकार ने बार बार कहा कि आप इसके अंदर जो आपको दिक्कत है उसके अंदर आप अमेंडमेंट कराइए। हमारा विरोध इसलिए था कि कृषि जो है वो स्टेट का विषय है। केंद्र सरकार कृषि के ऊपर कानून बनाने का केंद्र सरकार को हक नहीं है। जब हमारा संविधान बना उसके अंदर एग्रीकल्चर को स्टेट को दिया गया था, क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग अलग किस्म की खेती होती है। तमिलनाडु में किसी और चीज़ की खेती होती है, हरियाणा में किसी और चीज़ की खेती होती है, यूपी में किसी और चीज़ की खेती होती है, पश्चिमी बंगाल में किसी और चीज़ की खेती होती है। तो ये सोच समझ के निर्णय लिया गया था कि जहाँ जिस प्रकार की खेती है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा, वहाँ की स्टेट को होगा। और केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार के अंदर हस्तक्षेप करके ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर कानून बनाया है, क्योंकि कृषि के अंदर उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं था। कानून बनाया ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए और थोपा गया है किसानों के ऊपर। हमारा विरोध इस बात के लिए था। इसलिए हम ये बात कह रहे थे कि तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी गारंटी का कानून मिलना चाहिए। क्योंकि अभी हम जहाँ जहाँ भी किसानों से मिल रहे हैं, एक हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का छोड़ के कहीं भी किसानों को ये भी नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। हम अभी यहाँ भी बंगाल आए हैं, बहुत सारे किसानों से मिले हैं, खेतों में जाके मिले हैं, उनसे पूछा है कि आपको एमएसपी पता है, तो उनको एमएसपी पता ही, उनको कभी आज तक आज़ादी से लेके आज तक एमएसपी मिला ही नहीं है। हरियाणा के अंदर 1868 रुपये में धान बिकता है और आपके बंगाल में 3 फसलें धान की होती हैं और उनको जो मैक्सिमम पैसे मिले हैं वो 1000 से 1200 रुपये क्विंटल मिले हैं। 1 क्विंटल धान के पीछे उनका 600 रुपये से लेके 700 रुपये तक का नुकसान है। मक्का जिसका एमएसपी सरकार घोषित करती है 1850 रुपये है और यहाँ पे मक्का बिकता है 900 रुपये, जबकि बाकी की जो फसलें हैं उनका तो एमएसपी घोषित ही नहीं किया जाता। भारत सरकार 23 फसलों का एमएसपी घोषित करती है। आज किसान वहाँ जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसकी डिमांड ये है कि अगर पंजाब के किसान का धान 1868 रुपये बिकता है तो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह का किसान को 1868 रुपये मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। किसी राज्य के अंदर कोई दिक्कत है, किसी राज्य के अंदर कोई दिक्कत है, इसलिए ये स्टेट को विषय दिया गया था। इसलिए हम यहाँ बंगाल में आए हैं, यहाँ के किसानों की बात जानने के लिए आए हैं, उनको आंदोलन के बारे में बताने के लिए आए हैं और
बीजेपी को वोट ना दें, क्योंकि हमारे 300 किसान हमारे बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो चुके हैं। जो बॉर्डर हमारे वहाँ दिल्ली में लगे हुए हैं, 300 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं। सरकार 22 जनवरी के बाद बातचीत बंद कर दी गई है। तो सरकार बंगाल आई हुई है, इसलिए हम भी बंगाल आए हैं कि बंगाल में आके तो सरकार मिलेगी, बंगाल में आके तो पूछेंगे उससे। और यहाँ के किसानों को ये बताने के लिए आए हैं कि यहाँ का किसान उनसे पूछे कि दिल्ली में किसान बैठा है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। धन्यवाद। I welcome you all on behalf of Sikh Kisan Morcha and जैसे राणा जी ने बताया कि the objective to come to Bengal is to get the Andolan to Bengal also. We have already had couple of rallies in southern part of Bengal, Kolkata, Nandigram, Asansol. So this part of Bengal was still untouched, and on behest of couple of ex-students and civil society, ex-students from some universities and civil society members, we were invited to Kuch Bihar district, Matha Banga, and we've spent 3 days there, and we've had small sabhas, big sabhas, tractor rally, where farmers, peasants were the participants, and we interacted with them, and we tried to figure out why is that from this part of the country farmers aren't actively participating. And then we discovered that they are not even aware of the basic cause or the reason behind this entire Andolan protest. So like Rana ji said, majority, in fact 99% of farmers weren't aware of what MSP is. And when we told them कि MSP क्या है और what is the price of the paddy grower farmers in Punjab and Haryana getting, and what is the price you are getting, and they were literally surprised. And of course the major objective is to appeal to the people of Bangladesh to not to vote for BJP. Sorry, Bengal to not to vote for BJP. Now, I come from Uttar Pradesh, and I have seen my Chief Minister Yogi Adityanath, who's done couple of rallies in Bengal. Currently, I think day before he was in Tamil Nadu as well. Now, my appeal is to the people of Bengal: do you really want to see how things are in UP? You must go through Google and see. State of UP is a state where the law and order has failed. The goons are ruling. The woman is not safe. The unemployment ratio is too high. It is a total mess. Rana ji comes from Haryana, Tejwari is from Haryana, again a BJP ruled state. तो अगर BJP सोनर बंगला बनाना चाहती है तो they should first talk about what they have performed in states where the BJP is already in power. If we see the plight of farmers in Madhya Pradesh, you will be surprised. Day before, Dainik Bhaskar had a story about farmers in Madhya Pradesh who plowed their this crop of bhindi. Why? Because they were paid 1 rupees, wherein in market it was being sold for 40 rupees. Now when they said bicholia khatam ho jayega, so where is that 39 rupees going if it is not coming to farmer who is getting it? So, and in Madhya Pradesh, even if you go out to protest, you get badly thrashed by the police. So the BJP is trying to ensure that nobody raises his or her voice. So we are here to request you to not to fall for the jumlas, and also we are here to tell Mr. Narendra Modi that you are Prime Minister of India, a very honorable profile. We respect you for that,
and he should act as if he should act like the Prime Minister of India, not some Manoj Tiwari type or some other BJP leader who has zero accountability. So he's Prime Minister of India. He should not indulge into the language he uses for a elected Chief Minister, and it is not his job to seek votes for his party, because now he is above his party. He's Prime Minister of India. He's not Prime Minister of BJP. वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, and he should respect the chair, so that people stop making fun of him. Yesterday, day before yesterday, the whole in fact first yesterday, people celebrated April Fool Day as Jumla Day, National Jumla Day. So that is something which is very shameful. And why people did is because the Prime Minister and his party has given enough reasons for people to actually make fun of him. So we in fact respect the chair, but he should prove that he is actually Prime Minister of India, and he should be concerned about each and every citizen of this country. He is least concerned. 300 farmers have died. He's not even tweeted. All what he did was that he's only a telephone call away. And when we ask what telephone number de do, there is no number. So who should we go to? The reason we are on streets surrounding Delhi is because the government want us to do. हमने तो वहाँ रामलीला ग्राउंड का परमिशन लिया था, but the government denied it, and they put barricades and they stopped us. And we are very sure we are fighting for our rights, rightful rights. We are not asking for something which the government is so concerned about is, or what are our demands? MSP, that is minimum support price. If a corporate can decide the price of his or her product, why are the farmers getting the MSP? And in fact, we are not even getting the MSP. The government record says only 6% of the farmers of India do get MSP. Our demand is 100% farmers should get MSP. What is wrong in giving us minimum support price? And yes, we are fighting for small petty farmers who, if this act will be practiced, their lands would be snatched away. So we are here to appeal to people of Bengal to not to vote for BJP. Thank you. सबसे पहले तो बंगाल के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि मोदी मीडिया हमारी बातें नहीं सुनता और वो जो दिखाता है वो सत्य नहीं बताना चाहता। हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आंदोलन अब एक फसल का आंदोलन ना होकर एक नस्ल का आंदोलन होगा। राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट। और इसके अंदर अकेला किसान ही नहीं प्रभावित होगा, हर वो वर्ग, क्योंकि हमने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, आपका खेती से नहीं तो रोटी से तो वास्ता है। और इसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी के अंदर सरकार ये मानती है कि तेल, दाल, आलू ये जरूरी चीजें नहीं, ये वस्तुएं नहीं। ये आपके रसोई का बजट 5,000 से 25,000 करने जा रहे हैं। हर एक वर्ग इससे प्रभावित होगा, जो नौकरी करता है, जो दुकानदार है, जिसका छोटा व्यवसाय। अब आप देख लीजिए, सिलेंडर के रेट पर नहीं बोलते, तेल का रेट आसमान छू चुका है। इस एक्ट के अनुसार सरकार बोलती है कि इन्होंने स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है कि जमाखोरी, कोई भी एक बड़ा उद्योगपति जिसके पास 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जब सप्लाई आएगी तो वो सस्ते रेट में बहुत बड़े लेवल पर स्टॉक करेगा, और जब डिमांड आएगी तो अपनी मर्जी से बेच सकता है। सरकार ने क्लियरली लिखा है कि 99% तक
जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, सरकार एंटर नहीं करेगी। इसका मतलब 1 रुपए की चीज खरीद कर वो 99 तक बेच सकते हैं। इसका मतलब ये काले कानून लीगलाइज करते हैं महंगाई को। हम ये बताने के लिए आए हैं। और दूसरी बात, आप ये देख लीजिए, राइट टू स्पीच, अगर इस कानून पर कोई बोलता है, आपके सामने अच्छा खासा धारा दिशा रागित, उन्होंने बोला, उनको जेल के अंदर कर दिया और कोर्ट क्लियरली ये बात बोलती है कि बोलने का राइट है। दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता होते हैं, जितने भी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन होते हैं, वो टीवी पर आकर एक बात बोल देते हैं कि ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी बैठे हैं, ये आंदोलनजीवी हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम आंदोलनजीवी हैं, क्योंकि बंगाल का आंदोलनजीवी से सबसे ज्यादा रिश्ता है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बंगाल और पंजाब ने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाई गई थी। आज हमें आज़ादी चाहिए कॉर्पोरेट से, हमें आज़ादी चाहिए फांसीवाद से। तो हम आपका साथ लेने के लिए आए हैं और नो वोट टू बीजेपी के साथ डिफीट टू बीजेपी, हम बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल। अगर आप लोग अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, देन आर यू इन ए पोजीशन टू, लोग को बोल रहे हैं कि जब इसको वोट दे, लोग तो पूछेंगे ये बात? नहीं, ये हम लोगों को ये कह रहे हैं आप किसी को भी वोट दें पर बीजेपी को ना दें। Also, the Shiv Kisan Morcha has decided for a Parliament Ghirao March. We'll be doing it in May. The dates would be soon released. We've given a tentative idea of when we want to do it. और उसके अलावा जो on 10th of April, the Outer Ring Road, Eastern Periphery Expressway and KMP, Kundli Manesar Palwar Highway, we will be blocking it for 24 hours so that the government who is least concerned when the supply chain of basic things would be stopped, then they might start thinking कि भैया किसान बैठे हैं. And of course the national media which isn't showing the true story, they will have to at least show that कि भाई किसान ने चाहे नेगेटिव ही दिखाएंगे, हिंदुस्तान के लोग इतने तो समझदार हैं तो वो पॉजिटिव वो खुद ही ढूंढ लेंगे उसके अंदर. So आपको अगर लगता है if BJP is defeated, then BJP will be compelled to withdraw this 3 farm laws? देखिए हम तो दिल्ली आए इसलिए थे, जैसे राणा जी ने बताया पहले, इट इज़ नॉट दैट ऑल ऑफ सडन वी मूव टूवर्ड्स दिल्ली. पंजाब में 2 महीने, हरियाणा में 2 महीने, इनफैक्ट 3 महीने सड़कों पर बैठे, रेलवे गर्मी में रेलवे ट्रैक्स पे बैठे, सड़कों पर बैठे, रेलवे लाइन बंद करके रखा, तो ऑलमोस्ट 8 महीने. सो इट इज़ लाइक वी वर कंपेल्ड. तो हम तो इसलिए आए कि शायद जो हम गवर्नर को मेमोरेंडम दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं, शायद वो नरेंद्र मोदी तक पहुंचा नहीं रहे हैं. सो वी वेंट ओवर एंड वी सेड ओके, लेट्स टॉक टू द गवर्नमेंट right in Delhi. If the government is not willing to listen to us when we are sitting in our home states, दिल्ली चलते हैं. अब क्या है, and I must also say because in one of the meetings तोमर जी ने एक बात बोली थी कि भैया पंजाब और हरियाणा से हमारी एक भी सीट नहीं आएगी राज्य लोकसभा में, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दे हैव पुट इट, इनफैक्ट दे हैव शोन अस दिस पाथ कि ठीक है तुमको फ़र्क पड़ता है, जब तुम्हारी सीटें जाएंगी तो हम फिर आपको आपकी सीटें भी हरवा के दिखाएंगे. एंड बिकॉज वी बिलीव कि देश की 65% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग से रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा फार्मर्स ने ही बीजेपी को वोट किया था. एंड इफ वी कैन वोट बीजेपी टू पावर इन अ डेमोक्रेसी, यस वी कैन ऑल्सो टेक देम डाउन. 2014 में
अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+ के साथ लागू करेंगे, और तकरीबन सभी किसानों ने इस बात के ऊपर कि जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, इस पार्टी ने कहा है कि हम आपकी डिमांड को लागू करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो बहुत सारे किसानों ने इसी चीज़ के अंदर आके बीजेपी को वोट दिया था। और बीजेपी की फुल मेजॉरिटी की सरकार, मेरे ख्याल से बहुत साल के बाद कोई फुल मेजॉरिटी की सरकार आई, और मैनिफेस्टो में लिखा था इन्होंने कि हम C2+ स्वामीनाथन को लागू करेंगे। और ये रास्ता भी इन्होंने दिखाया है कि ये सीटों से ही डरते हैं, इसलिए हम बंगाल भी आए हैं, आसाम भी गए हैं, तमिलनाडु भी गए हैं, केरला भी गए हैं। किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, किसान सभी जगह जाके ये अपील करते हैं। देखिए, जहाँ पर भी जाते हैं किसान तो पूरे भारत में हैं, और कोई ऐसी समस्या नहीं है कहाँ रुकना है, क्या करना है। वहाँ पर सिर्फ जाके अगर हम बता भी देते हैं संयुक्त किसान मोर्चे से आते हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है एंड दे फैसिलिटेट ऑल दी मीटिंग्स एंड ऑल। तो अगर ये चुनाव में वो बीजेपी अगर हारती है तो देन वो होगा कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो लोग, हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होगा तो सरकार कम से कम बातचीत के लिए तो बुलाएगी। अभी 11th राउंड टॉक्स के बाद तो डिस्कशन नहीं हुआ नहीं, उसके बाद सरकार ने बातचीत बंद की है, हमने बंद नहीं की। 22 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं। हम ये जान